بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کے پلیٹ فارم سے اس ہفتے کی پاکستانی بیٹھک لے کر بلال مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ عمان میں بے شمار پاکستانی مختلف اداروں میں اپنی مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر پاکستانی اپنے آپ میں ایک الگ پہچان ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، میں ان کے اگر خدمات اور ان کی خوبیاں گنانا شروع کروں تو ایک لمبا وقت چاہیے مجھے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر میں ان کی شاعری کی بات کروں تو وہ اچھے شاعر بھی ہیں لیکن ساتھ میں اچھے مصنف بھی ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ لٹریری ونگ کے پہلے صدر بھی ہیں پاکستان سوشل کلب عمان کی جانب سے، تو بہت اچھے پاکستان اسکول مسقط میں بہت سارے عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں۔ بہت اچھی شخصیت، درس و تدریس سے عرصہ دراز سے منسلک آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں، ان کے اس شعر کے ساتھ میں ان سے مخاطب ہو جاؤں گا۔ لکھتے ہیں پاکستان عمان دوستی کے حوالے سے، رہیں یہاں اخوتیں رفاقتیں محبتیں، رہیں یہاں اخوتیں رفاقتیں محبتیں، پاک عمان دوستی رہے ہمیشہ لازوال۔ احمد شہزاد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ آئے ہمارے لیے یہ زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں اور مجھ سمیت میری تمام ٹیم اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پاکستان میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا تعلق پاکستان سے لاہور کینٹ سے ہے، اور میرے والدین 1947 میں امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور کینٹ میں آئے۔ اس سے پہلے وہ جڑا والا گئے، وہاں پہ ہماری زمینیں وغیرہ تھی، لیکن آخر کار لاہور ہی کو مستقل ٹھکانہ بنایا، تو لاہور کینٹ میں ہمارا یعنی آبائی گھر ہے۔ تو لاہور ہی سے میں نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور پھر ایف سی کالج لاہور میں داخلہ ہوا میرا، اور وہاں پر بڑا علمی ادبی ماحول ملا مجھے۔ وہاں میرے اساتذہ بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر ادیب تھے، جن میں ڈاکٹر آغا سہیل صاحب، ڈاکٹر آرزو چودھری صاحب، ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، ڈاکٹر طارق عزیز اور ڈاکٹر شبیع الحسن۔ ان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ احمد عقیل روبی صاحب، بہت بڑے نامور مصنف، شاعر ادیب، ڈاکٹر جیلانی کامران شعبہ انگلش میں تھے۔ وہاں کافی ادبی ماحول ملا، اور وہیں سے مجھے ایک میری ادبی صلاحیتوں کو جلا ملی۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا، اور پھر اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں داخل۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ایم اے اردو لکھی آپ نے؟ جی، ایم اے اردو میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو آپ کی پہلی جاب کون سی تھی؟ میری پہلی جاب پاکستان لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ڈی پی ایس، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج، وہاں سے میں نے اپنی جاب کا آغاز کیا۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے کریسنٹ ماڈل اسکول اینڈ کالج وہاں کچھ عرصہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد گیریزن انسٹیٹیوشن ہے آرمی کے، وہاں پر میں نے پڑھاتا رہا، اور پھر میں اس کے بعد مسقط آ گیا 2001 میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم عمان کی بات شروع کریں، میں آپ سے ایک ایسی چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کافی مذہبی سرگرمیوں میں بھی رہے ہیں، جیسا کہ کنز الایمان سوسائٹی، تو کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ جی، کنز الایمان سوسائٹی ہماری لاہور کینٹ ایک بڑی اچھی سوسائٹی تھی، جو علاقے میں مختلف مذہبی تقاریب بھی منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں کو علمی طور پر بھی پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے ایک لائبریری وہاں پر بنا رکھی تھی، اور وہ کنز الایمان سوسائٹی مختلف مجالس بھی کرواتی تھی، اور ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت پر بھی ان کا بڑا کام ہے کنز الایمان سوسائٹی کا۔ جی، ماشاء اللہ۔ وہ سالانہ کانفرنس بھی منعقد کرواتی تھی، اور میں وہاں پر ایز اے جنرل سیکرٹری میں نے کام کیا۔ پھر اس کا ایک
माहनामा निकलना शुरू हुआ, एक ये रिसाला जिसका नाम भी कंजुल ईमान ही था, तो मैं उसका पहला एडिटर था। माशाल्लाह। मतलब मजहबी घराना से आपका तल्लक है या कि फिर सिर्फ आप इस वजह से ही आए थे, कंजुल ईमान की वजह से? नहीं, माशाल्लाह मेरे मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है, और मेरे वालिद साहब वहाँ पर बैकबक 2-3 मसाजिद के अल्हम्दुलिल्लाह सदर जनरल सेक्रेटरी थे अपने इलाके के। अच्छा माशाल्लाह। और वो खासे मजहबी हवाले से मशहूर थे वहाँ। अच्छा माशाल्लाह। सारी बात है जी, अगर घर के बड़े दीनी कामों में हों तो बच्चे भी आगे फिर दीनी कामों में ही जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही सूरत हाल थी वहाँ। माशाल्लाह। तो अभी भी आप उनसे मुंसलिक हैं? हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा राब्ता वो वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी हवाले से मुंसलिक रहते हैं। सोसाइटी चल रही है? सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है, और अलहमरा हाल में उनकी सालाना कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती है। जी मैंने देखी है काफ़ी, उनकी सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी आते हैं उनके प्रोग्राम। जी। तो अभी हम ओमान में जब आप आए 2001 में, पाकिस्तान स्कूल मस्कत को आपने ज्वाइन किया बतौर टीचर, तो आपका कैसा तजर्बा है वहाँ पाकिस्तान स्कूल मस्कत के हवाले से? पाकिस्तान स्कूल मस्कत का जो तालीमी मेयार है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि दीगर कम्युनिटी के तालिब इल्म भी तालीम हासिल कर रहे हैं, और पाकिस्तान स्कूल मस्कत के पढ़े हुए बच्चे मुख्तलिफ पोजीशंस पर यहाँ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और पाकिस्तानियों के लिए एक ये ऐसा इदारा है कि जहाँ वो ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, क्योंकि हमारे स्कूल पाकिस्तान स्कूल में फेडरल लेवल के साथ साथ ओ लेवल और ए लेवल की भी तालीम दी जा रही है। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं ये लिस्ट देख रहा था आपकी कि आप माशाल्लाह हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट भी हैं, कोऑर्डिनेटर ग्रुप भी हैं 3 और 4 का, एडिटर भी हैं इकरा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के, इंचार्ज हैं आप करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी, उर्दू डिबेट के में भी आप हैं, चीफ डॉक्टर भी हैं, आप कंपेयर भी रहे हैं लिटरेरी कल्चर स्पोर्ट्स फंक्शंस के भी, और प्रेस कवरेज फोटोग्राफी कमेटी के भी आप इंचार्ज रहे हैं, हाउस मास्टर भी रहे हैं, और इस तरह की लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो आप इस सारे काम करने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल हजरात थे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग रहे हैं, उन्होंने मुझे ये टास्क दिए, मुख्तलिफ टास्क देते रहे कि आपने ये जिम्मेदारियाँ निभानी है। तो मुख्तलिफ, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, चीफ प्रॉक्टर भी रहा हूँ, और मुख्तलिफ और है जिनमें लिटरेरी फंक्शंस का और स्पोर्ट्स फंक्शन में, और ये हमारे 14 अगस्त और 23 मार्च के फंक्शन हुआ करते थे, वहाँ पर मैं एज ए कंपेयर जिम्मेदारी निभाता रहा हूँ। इसके अलावा लिटरेरी विंग में भी काम किया, और फिर फोटोग्राफिक और अखबारी मामलात को मैं देखता रहा वहाँ पर, यानी न्यूज़ के हवाले से वहाँ पर मैंने काफ़ी काम किया है। इसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ पोजीशंस पर भी काम किया है, जो शायद यहाँ उसका तज़किरा अभी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो टास्क दिया गया मुझे उसको एहसन तरीके से निभाया गया। माशाल्लाह। मतलब आप इस हिसाब से तो आप 24 घंटों में से 20 घंटे तो काम करते होंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमें जिम्मेदारी देगी उसको अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की। माशाल्लाह जी, इस वजह से तो पाकिस्तान स्कूल का एक नाम है, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जब बेशक उसके पीछे आप जैसे लोग ही हैं ना जो काम कर रहे हैं, तो आगे चल रहा है। जी तो, हमारे टीचर्स वहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं। जी वो बच्चों की खूबियों को, यानी बच्चों को की जितनी भी एबिलिटी है उनको निखारते हैं और उनको सामने लेके आते हैं, और हमारे जो तालिब इल्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम और कारकर्दगी से पहचाने जाते हैं। माशाल्लाह। तो अभी मैं आता हूँ ओमान में पाकिस्तान के दूसरे बड़े अदारे की जानिब, जो कि पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप लिटरेरी विंग, जिसको मजलिस शेर व अदब पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान का भी नाम दिया जाता है, अभी भी वो चल रही है, आप उसके पहले सदर थे। तो ये आपको ओहदा कैसे मिला? जी मस्कत में आने के बाद
यहाँ मुशायरे अटेंड किए मैंने, और उसके अलावा स्कूल में मैंने बहुत सारे मुशायरे करवाए, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान से भी शायर हज़रात आते थे और ख़वातीन शायरात भी आती थी। और इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी सैयद सखावत शाह बुखारी साहब, जो इल्मी अदबी शख्सियत है, और सईद साहब उस वक्त सदर थे, तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि आप सोशल क्लब के लिटरेरी विंग की सदारत संभालें और इस पर काम करें। उस हवाले से फिर हमने अपने काम का आगाज़ किया, मुख्तलिफ दोस्तों को साथ लिया, और उनके तावन से हमने बहुत सारे महाफिल का इनेकाद किया। हम हर 15 दिन के बाद एक अदबी बैठक मुनक्किद करते थे। अच्छा, माशाल्लाह जी, जिसमें शायरी के साथ साथ नसर का भी उसमें हिस्सा था। अच्छा, यानी वो सिर्फ शेर सुनाने के लिए नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ लोगों की नसर भी वहाँ आकर पढ़ते थे, और बहुत एक अच्छा माहौल था। और मज़े की बात यह है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं आते थे। अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और कुछ बांग्लादेश के लोग भी, जो शायर अदीब थे, वो बाकायदा उसमें 15 रोज़ा महफिल में शिरकत करते थे और अपना कलाम पेश करते थे। ये थोड़ा सा मजीद मैं जानना चाहूँगा, ये 15 रोज़ा से क्या मुराद है? हर 15 दिन के बाद एक अदबी महफिल पाकिस्तान सोशल क्लब के ऑफिस में मुनक्किद की जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें मस्कत के बहुत सारे लोग बाकायदा शिरकत करते थे, और उसका एक ऐसा लोगों को वो हो गया था कि हर आदमी कहता था कि ऐसी महफिल हर 15 दिन के बाद हमें अदबी महफिल चाहिए, ताकि लोगों का ज़ौक़ जो है और लोगों की जो तस्कीन है अदबी तौर पर, उसका एक अच्छा इजहार हो जाता है। कितना मुश्किल काम है 15 दिन के बाद अदबी महफिल कराना? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 15 दिन के बाद बाकायदा उसका इनेकाद करते थे, और उसमें मुख्तलिफ शायर आते थे। और उसमें यह भी होता था कि बाज़ुकात मस्कत में जो बाहर से शायर अदीब आते हैं, हम उन्हें भी मदऊ करते थे, और उस पर कुछ लोग मज़ामीन भी पढ़ते थे और उसके हवाले से बात भी करते थे, और उनका कलाम भी सुना जाता था, और मस्कत के जो शायर थे वो भी अपना कलाम पेश करते थे। तो जो उस वक़्त के जो मस्कत में जो शायर थे, पाकिस्तान जो कम्युनिटी से जो तल्लुक़ रखते हैं, चंद शुआरा कराम का नाम लेना पसंद करेंगे? हाँ जी, जनाब मुरव्वत अहमद साहब, वो तो किसी तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है। उसके अलावा सखावत शाह बुखारी साहब भी थे, मेरे साथ कमर रियाज थे, नासिर मारूफ साहब भी आए। हम इन दोस्तों को हम लेकर आए हैं उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें अदबी महाफिल में, और शकील शहाब वगैरह, और फिर मकबूल शेख साहब वगैरह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और ये जितने भी, यानी आज आपको सब दोस्त शायरी में नज़र आ रहे हैं, तो ये उन्हीं हमारी महाफिल ही से आए हैं। एक अच्छा, और अच्छा, नसीम साहब थे उस वक्त शायर। जी, मैंने 2-3 मुशायरे देखे हैं उनके। तो उसके अलावा जाकिर साहब भी बाद में आए। अच्छा, माशाल्लाह। इस तरह बहुत सारे दोस्त, हो सकता है मैं बहुत सारे नाम इस वक्त शायद याद ना आ रहे हो, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल इंडियन हमारे दोस्त, काफ़ी दोस्त आते थे उसमें। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने जितने भी शायर मैंने देखे हैं, उनमें से 2-3 का तो इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं, माशाल्लाह। लेकिन ये जो 15 रोज़ा जो मैं आपने बाद में जो बताई आपने, जो महफिल थी, इसकी बदौलत जितने भी मौजूदा शायर हैं सारे वहाँ से ही निकले हैं। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्लेटफार्म ऐसा था कि उसी प्लेटफार्म की वजह से बहुत सारे लोगों ने बाद में अपना नाम बनाया। जी, माशाल्लाह। अभी मैं आता हूँ बिल्कुल आपकी ज़ात की जानब। आप बहुत अच्छे माशाल्लाह दर्स व तदरीस के माने जाने उस्ताद हैं, आपने किताब भी लिखी हुई हैं, शायर भी हैं। तो इससे पहले कि मैं किताब तक पहुँचूँ, तो सबसे पहला और मुश्किल मरहला होता है, वो होता है पहला शेर लिखना। आपने किस उम्र में पहला शेर लिखा था? पहला शेर तो मुझे जो ख्याल पड़ता है कि मैंने कोई 6ठी-7वीं की जमात में लिखा है, लेकिन उस वक्त इतना शऊर नहीं था। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शौक बढ़ता गया, और मैट्रिक के ज़माने में मैं अपने इलाके की सतह की जो मजालिस होती थी या महाफिल होती थी
शेरी अदबी उसमें जाना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हमारे इलाके में प्रोफेसर हमीद कौसर साहब एक बड़ा नाम थे। वो अबुल असर हफीज जलंधरी के मानवी बेटे भी थे। तो वो उनकी सरपरस्ती में हमारी एक तंजीम चला करती थी, तो उसमें मैं शिरकत करता था। तो और 1981 या उसके आसपास में मैंने पहला मुशायरा अटेंड किया। अच्छा, माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि वो पहला मुशायरा जो था वो हफीज जलंधरी, जिन्होंने अच्छा पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, जी, उनकी सदारत में मैंने पढ़ा। माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो उसी वजह से आपको जो 4 चांद लगे हुए हैं ना, बस उन्हीं का ही साया है। बस ऐसा है कि अदबी शौक वहीं से परवान ज्यादा चढ़ा, और फिर उसी शौक के जेर असर मैंने एमए उर्दू भी किया। अच्छा, माशाल्लाह। कि और वहाँ पर लाहौर की अदबी महफिल में जाना शुरू कर दिया, पाक टी हाउस वगैरह में शिरकत करता था, और पंजाबी की जो अदबी महफिल थी वहाँ भी शिरकत किया करता था। माशाल्लाह। तो ये शायरी आपके किसी फैमिली में या ख़ानदान में और भी शायर है या सिर्फ आपको ही सिर्फ शौक था? नहीं, मेरी यानी फैमिली में कोई शायरी का कोई इतना शौक तो नहीं था किसी को, लेकिन मेरी वालदा मरहुमा को पढ़ने का बड़ा शौक था। ये अदबी रसाइल और दूसरे इस तरह के जो रसाले या डाइजेस्ट वगैरह थे, तो वो मेरी वालदा बड़े शौक से पढ़ा करती थी उनका, और वो बड़ा अच्छा पढ़ भी लेती थी, खुसूसन नातें वगैरह। उनकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, तो उनको थोड़ा सा अदबी और कहानियां पढ़ने का शौक था, अदबी शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप किन को देखकर शायर बने थे? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको देखकर, तो ऐसे ही शौक परवान चढ़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायरी की तरफ मैं आता गया। तो किसको पढ़ते हैं आप? और मुझे ज्यादा जो सबसे अच्छा शायर लगते हैं वो मुनीर नियाजी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मुनीर नियाजी उर्दू के बहुत बड़े बाकमाल शायर हैं। जी जी। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी नज़में बड़ी मशहूर है, उनके अशार बड़े मशहूर है। जी जी। और मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान में जितने भी कॉलम शाया होते हैं उनमें मुनीर नियाजी का कोई ना कोई एक शेर लाजिम जरूर होता। अगर एक हफ्ते में आप देखें तो आपको उनके बहुत सारे अशार मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने फिर हमारे एक सफ़ीर साहब थे, उन्होंने मुनीर नियाजी साहब को यहाँ पर बुलाया, फिर उसके अलावा उन पर एक मज़ामीन भी मुझसे एक लिखवाया, और जो मेरा ये मजमून मैंने उनको मुनीर नियाजी पे लिखा है उर्दू न्यूज़ से भी शाया हुआ। जद्दा से जो अखबार शाया होता है। माशाल्लाह। बहरहाल मुनीर नियाजी वाकई बहुत बड़े शायर हैं, बाकमाल शायर हैं। माशाल्लाह। मैं भी देख रहा था मेरे इर्द गिर्द और घर में, मैंने जगह जगह पे देखे आपके बहुत सारे रसाइल पड़े हुए हैं, पुराने भी। आप अभी भी ऑनलाइन भी लिख रहे हैं, ये अदब के हवाले से मुख्तलिफ आपके मज़ामीन आते रहते हैं, कालम आते रहते हैं आपके, शायरी भी आप करते रहे हैं। आप आगे आपका क्या प्लान है? मेरा जी आजकल मैं ज़रा कॉलम लिखने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलम पाकिस्तान में जब मैं था तो रोज़नामा नवाए वक्त से मैंने आगाज़ किया कॉलम लिखने का, बाकायदा नाम और लोगो, और मेरे कॉलम का नाम दीदा नादीदा है। तो उसके तहत मैं कॉलम लिखता था। रोज़नामा जंग में भी मेरे शाया हुए हैं। मस्कत में आने के बाद थोड़ा सा इनमें तात्तुल लाया, लेकिन अभी मैंने कुछ अरसे से दोबारा कॉलम लिखने शुरू किए। तो उर्दू का जो सबसे बड़ा इंटरनेट अखबार है हम सब, उस पर मैं आजकल कॉलम लिख रहा हूँ। और आइंदा मैं जो चाह रहा हूँ कि कॉलम के साथ साथ कुछ अफसाने मेरे लिखे हुए हैं, और मैं अफसाने और कुछ लिखकर एक अपनी किताब मुकम्मल करूँ। एक किताब कॉलम की और एक किताब अफसानों की मैं मुस्तकबिल में लाना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह। तो अभी आपने किताब की बात की है, तो मैं मेरे सामने अभी देख रहा हूँ शाम शहर वसाल, आपकी पहली किताब, जिसकी तकरीबी रोनुमाई मुल्क पाकिस्तान में भी हो चुकी है, मुल्क ओमान में भी हो चुकी है, जिसमें औरिया मकबूल जान साहब तशरीफ़ लाए थे, उनके हाथों हुई थी।
تو یہ دونوں واقعات جو ہیں، دونوں تقریب رونمائی ہیں، ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ کیسی تقریب رہی؟ جی الحمدللہ میری اس کتاب جو شام شہر وصال ہے، میرا پہلا مجموعہ کلام ہے، اس کی پاکستان لاہور میں الحمرہ ہال میں تقریب رونمائی ہوئی پہلی دفعہ، جس میں بہت بڑے بڑے نام ڈاکٹر سلیم اقبال جنہوں نے صدارت کی، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سید شبیع الحسن ہاشمی اور اوریہ مقبول جان صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صوفیہ بیدار صاحبہ نے وہاں نظامت کا فریضہ انجام دیا، اور مضامین پڑھنے والوں میں بہت بڑے نام احمد عقیل روبی صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب اور چند دوسرے دوست احباب تھے جنہوں نے میرے کلام پر اور میری کتاب پر اظہار خیال کیا۔ اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں جب مسقط میں آیا تو یہاں بھی دوست احباب نے ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ مسقط عمان میں جو میری تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں اوریہ مقبول جان صاحب نے آ کر اس کی صدارت فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اسلم کولسری صاحب بڑے خوبصورت شاعر ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، اور صوفی تبسم کی پوتی فوزیہ ڈاکٹر فوزیہ تبسم بھی پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے تھے میری کتاب رونمائی کے لیے۔ تو الحمدللہ دونوں جگہ پر تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا، اور یہ ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ مسقط اور لاہور میں تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جی، آپ بیک وقت دونوں ممالک میں یکساں مقبول ہیں، ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہوں گا کتاب کے حوالے سے کہ کتاب لکھنے میں کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ کتاب لکھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے جی، کہ جب انسان ایک اپنے کتاب کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ میری کتاب ایک ایسی آئینہ ہو کہ جس میں ایک پورے معاشرے کی ایک پوری تصویر نظر آئے۔ جی جی۔ تو میری اس کتاب میں مختلف ادوار کے حوالے سے میری شاعری ہے، کہ جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے جب سے ابتدائی شاعری کی اور اس کے بعد طالب علمانہ دور، پھر میرا جب میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا وہ ہے، اور میری اس کتاب میں مختلف پہلوؤں کو میں نے نظم کیا ہے، یعنی کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور کہیں زندگی کانٹے ہے، کہیں زندگی پھول ہے، کہیں غم کی پھوار پڑ رہی ہے، کہیں خوشی کی موسلادھار بارش ہے۔ تو انہی جذبوں کو میں نے اپنی کتاب میں پیش کی۔ جی ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا تھا کہ اس تصویر جو اپنے بیک گراؤنڈ پہ لگائی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ میں تصویر کی بات کروں، لکھا ہوا ہے ہر شخص کو جس بات پہ اصرار بہت ہے، اس دل کو اسی بات سے انکار بہت ہے۔ یہ شعر آپ نے جو ٹائٹل پہ لکھا ہے، اس پہ لکھنے میں پیچھے راز کیا ہے؟ شاعری جو ہے اصل میں وہ مختلف جذبات اور احساسات کا اظہار ہے، تو ایک شاعر پر مختلف قسم کے جذبات اور احساسات جو ہے وارد ہوتے رہتے ہیں، تو ادب چونکہ انہی احساسات اور جذبات کے اظہار کا نام ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کوئی خاص ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ وقت ایک آتا ہے کہ ہر قسم کے جذبات کو انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شاعر جو ہے اس کا اظہار وہ اسی حوالے سے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو عمان میں تو کافی مشاعروں میں آپ جا چکے ہیں، آپ نے شروع میں بھی بتایا، وہاں پاکستان میں بھی کر چکے ہیں، کیا آپ دوسرے ممالک میں بھی گئے ہیں مشاعرہ کے لیے؟ مشاعرے کے لیے تو میں نے کوئی خاص سفر نہیں کیا، لیکن میں ایک دو جگہ گیا، انگلینڈ میں گیا، وہاں پر ایک ادبی محافل میں نے اپنے اشعار پڑھے ہیں، اور یعنی جدھر بھی گیا ہوں تو وہاں پر شاعری پیش کی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ عمان میں اب تک کتنے مشاعروں میں آپ پڑھ چکے ہیں؟ اب یاد نہیں، انگنت ہے۔ میں جب سے آیا ہوں یہاں، ہمایوں ظفر زیدی صاحب ایک ہمارے انڈین دوست تھے، بلکہ اچھے شاعر تھے یہاں پر، وہ یہاں پر
मुशायरे करवाया करते थे। मुरव्वत साहब हैं माशाल्लाह, वो मुशायरे करवाया करते हैं। और दूसरे चंद दोस्त अहबाब हैं तो जो अदबी महाफिल मुनक्कद करते रहे हैं, तो उनमें शिरकत करते रहे। बिलाशुबा कोई इसमें कोई लिंदा क्या ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि बहुत सारे जो शुअरा कराम हैं, जब भी मैं उनसे बात पूछता हूँ कि उनको आगे लेके आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कौन सी शख्सियत का ज़्यादा अमल रहा है, तो वो सबका एक ही आंसर होता है, सब एक ही आंसर देते हैं, मुरव्वत साहब। आप उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुरव्वत साहब बड़े अच्छे हमारे शायर हैं यहाँ के, और वो खासा उन्होंने अदबी महाफिल को उन्होंने खासा प्रमोट किया है। इस हवाले से उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। ठीक, मैं भी ये पूछना चाहूँगा, एक तालिबे इल्म से लेकर एमए तक, एमए उर्दू से लेकर कॉलेज लेक्चरर तक, स्कूल से लेके पाकिस्तान स्कूल मस्कत से लेके पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के लिटरेरी विंग के हेड तक, एक किताब के मुसन्नफ से लेकर ऑनलाइन कॉलम निगार तक, आप क्या समझते हैं कि आपके पीछे आपकी फैमिली का कितना हाथ है? जी, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे साथ बड़ा ताउन किया है। मेरी जितने भी शब रोज़ हैं, चाहे वो इल्मी हो, अदबी हो या किसी और हवाले से हो, तो मेरी फैमिली ने मेरा भरपूर साथ दिया है। और हकीकतन मैं इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़ौजा ने हर कदम ब कदम मेरा साथ दिया। वो बड़ी काबिल खातून है कि उन्होंने जब शादी के बाद पढ़ना चाहा तो मैंने उन्हें तजवीज़ दी कि आप भी एमए उर्दू कर लें। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी खानगी ज़िंदगी के साथ साथ, घरेलू काम के साथ साथ उन्होंने अपनी तालीम भी साथ मुकम्मल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पाकिस्तान स्कूल मस्कत से ही पढ़े हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं और एक माशरे के अहम फ़र्द के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी फैमिली ने हमेशा भरपूर साथ दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अभी जाने से पहले कि मैं आपसे आपकी जो एक पसंदीदा नज़म सुनूं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्कूल मस्कत और सोशल क्लब के बारे में आप कुछ कहें कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे बेहतरी ला सकते हैं। पाकिस्तान स्कूल मस्कत जो है वो एक ऐसे इदारे के तौर पर सामने यहाँ आया है कि जिसने बच्चों को एक अच्छा तालीमी माहौल दिया है। और यहाँ हमारे काफ़ी जो दोस्त हमारे असातिज़ा हैं वो बड़ी मेहनत से वहाँ अपना काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान स्कूल मस्कत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूब निभा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें और बेहतरी लाएंगे ताकि अच्छे असातिज़ा आएँ और वो बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें। तो इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त है कि जो उसके कारपरदारान है, यानी उसके जो हमारे स्कूल की इंतज़ामिया है, वो पाकिस्तान से अच्छे असातिज़ा को लेकर आए और उसका तालीमी मेयार पहले से और ज़्यादा बेहतर। और सोशल क्लब के वाले से, पाकिस्तान सोशल क्लब एक बहुत बड़ा इदारा है यहाँ पे। पाकिस्तान सोशल क्लब एक ऐसा इदारा है जिसमें पूरे पाकिस्तानी शामिल हो सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। और उसके चेयरमैन जनाब मियां मुनीर साहब जो दामे दरमे कदमे सुखने हर लिहाज से पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की खिदमत सर अंजाम देते हैं, तो उनकी सरबराही में ये पाकिस्तान सोशल क्लब बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन उसको थोड़े से सोशल होने के नाते से, क्योंकि नाम भी इसका पाकिस्तान सोशल क्लब है, उसको ये चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं कि जो हेल्थ की इशू है जिन लोगों के, उसमें थोड़ी सी मावनत करें। यानी कि कोई ऐसा अपने सोशल क्लब के अंदर ऐसा सेटअप बनाए कि एक हफ्तावार डॉक्टर बिठाएं और वहाँ पर वो लोग जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ जाएं और अपने इलाज के लिए वो अपना सोशल क्लब एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिससे मुस्तहिक लोगों को
इलाज की सहूलत मिल सकती है। जी तो बहुत उसके शुक्रिया। अलावा पाकिस्तान सोशल क्लब को चाहिए कि ऐसे तालब इल्म जो स्कूल की फीस अदा करने से कासिर है उनकी मिलजुल कर फीस अदा करें और ऐसे तालब इल्मों को और आगे पढ़ाई की तरफ लेके जाए, या चंद ऐसे अच्छे तालब इल्मों को मुंतखब करें कि जो वाक़तन डिज़र्व करते हैं हकीकी मानों में, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं सोशल क्लब के लोग और कम्युनिटी, ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को की तकमील कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज़ है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं गुजारिश करूँगा कि एक नज़म हो जाए बेहतरीन किस्म की। वैसे तो बहुत सारी बेहतरीन होती हैं, हर शायर के लिए उम्दा होती हैं, लेकिन ख़ास एक आज हमारे प्रोग्राम के लिए, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए एक यादगिरी रहे। हर शख्स को जिस बात पे इसरार बहुत है, इस दिल को उसी बात से इनकार बहुत है। हर शख्स को जिस बात पे इसरार बहुत है, इस दिल को उसी बात से इनकार बहुत है। एक वो कि उसे कसरे फलक बोस भी कम है, एक वो कि उसे कसरे फलक बोस भी कम है। एक मैं कि मुझे सायाए दीवार बहुत है, खुद शौक से रखा था कदम राह वफा में, खुद शौक से रखा था कदम राह वफा में। अब कैसे कहें राह ये दुश्वार बहुत है, अब कैसे कहें राह ये दुश्वार बहुत है। और किस शहर में लाई है हमें खींच के तकदीर, वाह, किस शहर में लाई है हमें खींच के तकदीर। जिंदा है यहाँ एक लबे इजहार बहुत है, और तुम देख सकोगे ना यहाँ खूं का तमाशा, तुम देख सकोगे ना यहाँ खूं का तमाशा। मक्तल है यहाँ गर्मिये बाजार बहुत है, और ये बज़्म जहां जिसके लिए छोड़ दी उसको, ये बज़्म जहां जिसके लिए छोड़ दी उसको। अब तर्के ताल्लुक ही पे इसरार बहुत है, और खामोश है शहजाद ये क्यों सारी खुदाई, खामोश है शहजाद ये क्यों सारी खुदाई। एक हम है कि चुप रहने से इनकार बहुत है, हर शख्स को जिस बात पे इसरार बहुत है, इस दिल को उसी बात से इनकार बहुत है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। तो अभी जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए जो तलबा हैं, जो सोशल क्लब से मुंसलिक हैं, जो दीगर अवाम हैं हमारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोज़गार के सिलसिले में आए हुए हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा सबके लिए एक ही पैगाम है कि हम बुनियादी तौर पर सब पाकिस्तानी हैं, और हमने पाकिस्तान का ही नाम और परचम बुलंद करना है। जी। तो हम ऐसा कुछ काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो या हमारे मुल्क का नाम खराब हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें, और यही यूनिटी जो है ये हमारे काम भी आएगी। अगर हम मजबूत होंगे, अगर हम एक होंगे, तो हमारा नाम और काम जो है वो सबसे अच्छा होगा। तो मेरी पाकिस्तानियों से यही गुजारिश है कि खुदारा जहाँ भी हो, आप एक पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर हैं। अगर आप इसका लिहाज करेंगे तो हमारा नाम और काम भी अच्छा होगा, और हम दुनिया की दीगर अक़वाम के मुकाबले में एक सुरखरू कौम के तौर पर जाने जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ और जांफशानी के साथ करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, अच्छी गुफ्तगू रही, आपके बारे में जानने का हमें भरपूर मौका मिला, और ऐसी खूबियाँ और जो बातें थीं जो हमें पहले नहीं मालूम थी, आज की नशिस्त में हमने जानी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इसी पैगाम को लेके आगे चलते हैं कि हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, ताकि जहाँ पर हम रहें हमें ये समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं,
ہم ہیں تو پاکستان کی عزت ہے، اگر ہم غلط کریں گے تو پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ اگلے ہفتے۔ پاکستان زندہ باد، پاک و مان دوستی پائندہ باد۔